यस गुड इवनिंग गर्ल्स। बेटा आज जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ सेल्स। सो सेल्स क्या होती हैं? द टर्म सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड. I am again repeating, sales means the amount for which the goods are sold. Sales may be on cash or it may be on credit. So cash sales include like for example, I go to the market and purchase a book for rupees 500 on the counter. That is an example of cash sales. Similarly credit sales बेटा वो होती हैं जिसमें हम immediately cash pay नहीं करते. After particular period we pay the cash. That is called credit sales. Like मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसकी पेमेंट मैं after 1 month करती हूँ. That is an example of credit sales. Now sales include sale of goods, not of assets beta. As we have already discussed what are assets and what are goods, so sales means sale of goods only. For example, sale of furniture by owner of furniture shop is called sales. एक फर्नीचर में डील करता है पर्सन, ठीक है, ही इज सप्लायर ऑफ फर्नीचर एंड he is selling furniture, that is called sale of goods. But sale of furniture by auto dealer will not be treated as sales. एक ऑटो डीलर जो ऑटोज़ में डील कर रहा है, अगर वो अपना शोरूम का फर्नीचर बेचता है तो इट मीन्स ही इज़ सेलिंग एन एसेट. It is not the sale of goods. So whenever we will use the term sales, it means sale of goods, not of assets. Now the next term is purchase return. Now purchase return क्या होता है बेटा? Purchase return means when the goods are returned to the supplier. मैंने कोई सामान खरीदा, वो एज़ पर जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस मुझे थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं था, तो मैंने वो सामान सप्लायर को वापस कर दिया. इट मीन्स दैट इज़ माई परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड. Return outward. And whenever goods are returned to the supplier, a debit note is also sent to the supplier along with the goods returned. So once again मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, परचेज रिटर्न. परचेज क्या होता है? कुछ भी खरीदना. हम कुछ खरीदते हैं, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन सप्लायर ने आपको बताई थी उस स्पेसिफिकेशंस के साथ गुड्स मैच नहीं करती, सैंपल के साथ मैच नहीं करती, तो हम उन गुड्स को सप्लायर को वापस कर देंगे. तो जब हम गुड्स सप्लायर को वापस कर देते हैं, जो सामान हमने खरीदा वो हमने वापस कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न. रिटर्न का मतलब वापस करना, परचेज का मतलब जो हमने खरीदा. So that is why its another name is return outward. Outward because जो हमने खरीदा था वो हम अब वापस भेज रहे हैं, that is going out. That is why it is called return outward. Now next term is sales return. Sales return. Sales return is also called return inward. जैसे अभी मैंने बताया purchase return was return outward and sales return is called return inward. Why we are using the term inward? Because supplier is getting back the material which he has already sold. Again, goods which are returned by a customer to the supplier. यहाँ पे goods कस्टमर ने खरीदी और वो किसको वापस कर रहा है? सप्लायर को वापस कर रहा है बेटा. तो when the goods will be returned by a customer to the supplier, these are called sales return. सप्लायर के पास सेल्स वापस आ रही हैं, that is why inward. It is called return inward. And in case of sales return, credit note is prepared. Now the next term which I am going to discuss with you is stock. Beta, very important term, stock. Stock means tangible asset. स्टॉक, जब भी एक फैक्ट्री है उसमें सामान बनता है, वो सामान बन के तैयार होता है, फिर उसको मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है. तो स्टॉक इज़ समथिंग विच इज़ टैंजिबल एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड टैंजिबल एसेट. कुछ सामान हमने बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के अंदर 500 यूनिट्स तैयार किए गए, ठीक है, 500 यूनिट्स, उसमें से 300 यूनिट्स मार्केट में सेल हो गए, तो हमारे पास जो स्टॉक बचा, जो सेल नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक. पूरा साल सेल चलती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक विच इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट, दैट इज़ कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. And closing stock is always valued at cost price or market price, whichever is lower.
मोर ओवर बेटा क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट में करंट एसेट की तरह शो करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन एज अ करंट एसेट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं. तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें एसेट साइड पे करंट एसेट्स की हेडिंग के अंडर क्या डलेगा, स्टॉक डलेगा. नाउ नेक्स्ट ईयर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, because at the end of the year it is called closing stock and in next year it will become opening stock. Now stock is of three kinds. Number one, raw materials, stock of raw materials. Number two, work in progress and finished stock. Now first of all raw material क्या होते हैं बेटा, raw material whenever production is started, जब भी फैक्ट्री में कुछ बनाना होता है तो उसको बनाने के लिए हमें raw material की ज़रूरत पड़ती है. रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल, किसी भी सामान को बनाने से पहले उसके लिए उसके रॉ फॉर्म में हमें उसकी ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ वाई रॉ मटेरियल जो है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर यूज़ होता है बेटा, एंड इट रिक्वायर्स फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. क्योंकि रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम गुड्स को तैयार करेंगे, उनको सेलेबल कंडीशन में लेके आएंगे और मार्केट में बेचेंगे. Now, every manufacturing concern requires raw material for the purpose of goods manufactured to become saleable in the market, and unused portion of raw material at the end of the accounting year held in the factory premises is known as closing stock of raw material. जितना सामान हमने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लिया, जितना सामान हमने फैक्ट्री के अंदर यूज़ कर लिया और उसके बाद जो बच गया, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. नाउ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स ऐसा स्टॉक जो अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ, जो सेलेबल कंडीशन में नहीं है, स्टिल सम वर्क इज पेंडिंग ऑन दैट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. देन नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज फिनिश्ड स्टॉक. फिनिश्ड स्टॉक मीन्स ऐसा स्टॉक जो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, विच इज़ रेडी टू सेल इन द मार्केट. So there are basically three kinds of stock: raw material, work in progress and finished stock. Thank you beta.